Hello everyone. So we'll now begin the circle. And before we begin the circle, please allow me to read the guidelines. And healing circles are safe havens. They are built on the foundation of kindness and respect. We all agree to listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in the circle confidential. We trust each of us has guidance we need within us and we rely on the power of silence to access it. So, thank you so much for joining in today's Healing Circle Talks. And today we have once again a very special, motivational, inspirational speaker with us, Anjali. And she has an amazing journey with cancer. It has completely transformed her life. She was Mrs. India and an actress by profession. She was 54-year-old when she was detected with breast cancer in 2015. So that makes her now 59. And I all this while I used to believe that she must be in late 40s. So we would love to know more from her. What is the secret behind this? Not aging. So the doctor conducted a biopsy and the reports came positive for breast cancer. She underwent surgery and chemotherapy. The cancer journey was painful, but she somehow kept her will strong to get through it. She completed a total of 6 chemotherapy sessions and radiation was not required in her case. She recovered and started following her passion. She learned dancing and swimming. She won multiple awards for acting, and she also won the Mrs. India award. And as she says, think positively and understand that you have to go through the journey. This too shall pass. Cancer taught me how to live, what to eat, and how to deal with people. Cancer taught me what life is. I fought with cancer. Cancer did not fight with me. It helped me to cut off all the negativity from my life. So what a wonderful message that you are sharing with the world, Anjali, and you are truly an inspiration for all of us because this is the time when people sometimes they give up, and and I know when I'm seeing you now as like 60-year-old person, and another patient that I have who is 62-year-old. So when I was talking about that person, I was saying, oh my god, yeah, the person is old, and she's like, I don't want to go for chemotherapy because I'm old. And now that I'm seeing you, not much difference in the age, but I see you as okay. How come then the 62-year-old person is old and cannot take the treatment, right? So I'm definitely gonna show your video to her that anything is possible if you have the strong willpower. And more, we would like to learn from you. आपने जब आपका cancer diagnosis हुआ था, आपका journey कैसा था? How did you deal with the shock of the initial diagnosis? So thank you so much for joining us, and it's an honor for us to share this platform with you, Anjali. Yeah. थैंक यू. सो अंजलि, आप बताएंगे आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ था? Basically, I was a teacher. I used to take private tuitions and home-loving lady, doing all the work, बच्चों को बड़ा करना, खाना पीना, mother-in-law and all. So my body used to get pain, shoulder pain, finger pain, joint pains and all. So I used to go meet my doctor. They used to say arthritis का होगा maybe, and I used to take painkiller and all. Then smoothly everything was going on. So after thoda din pehle, my back started paining like anything. It was poking like anything, something was poking like. So massage and all, everything I have done. Then I went to my doctor. He said normal pain hai, maybe age wise bhi ho sakta and you're not doing exercise and all. Then one fine day I saw a small lump on my right breast. So that was very much shock. I heard about the cancer. I thought from the beginning, because we were not awareness of this cancer. From childhood, what we used to think, जो cigarette पीते हैं, दारू पीते हैं, उसी को cancer होता है. Normal लोग को नहीं होता है. That was a bad thing, awareness नहीं था. Then I went to my doctor. I said, मैं तो दारू वारू भी नहीं पीती हूँ, cigarette भी नहीं पीती हूँ. How come this? Then he said, cancer का हो सकता है शायद. The moment he said cancer, then tears rolled, I started crying. He said, रोने से कुछ नहीं होगा. Go for the biopsy. Then I went. The report came normal. Positive. It was a shocking for me. Like, मेरे family में first time this has happened. Then doctor said, now you have to go for the treatment. I went for the mastectomy operation.
Yeah, remove the breast. And after that, what? You know, shocking time. Operation to done. But I was worried about because I was having long hair till my hips, you know, long hair I was having. बाल चले जाएंगे, टकली हो जाऊंगी, you know, all negative things that come on the mind. So I thought I don't want to do chemo. उसका भी marker report had come, so you have to take chemo. Then I used to go for counseling. All the people, you know, क्या होगा, मेरा क्या होगा, and the period was very bad. Like, you know, I thought I will commit suicide. I don't want to live like this. I didn't say to my husband. मैंने सोच लिया सुसाइड कर लेती, जाने दे, छुट्टी हो जाएगी सब चीज से, बदनामी तो नहीं होगी ना, because I was so negative that time. Then my daughter say, Mama, why you are crying? We are there with you, everything will be okay. You are not a smoker, you are not a drunkard. हो गया ना. Then, you know, all positivity came, like my daughter, my son, my husband said, we are there with you, we'll do everything, how much kharcha, will do everything. तो एक मन में आ गया, okay. And someone, you know, this thing spread with the friends, you know, Anjali ko cancer ho gaya. There are many, you know, negative friends also. So from WhatsApp I got the message, अच्छा हुआ उसको कैंसर हुआ, उसकी घमंड सब निकल जाएगी. That word came to my mind. I say, this is challenging for me. I want to cure myself, and I will show the person what I am and what I can do. Then chemo started. Because my mother-in-law was 92 years old, she was bedridden. And my husband is the all alone son. He has to take care of my son was not married that time. So my friend told me, Sujata Kanchan, she has 3 kids. She said, Anjali, she is my building friend, old building friend. I just called her. I said, मेरे को cancer हो गया. मेरा कैसा होगा? Because I am very मस्तीखोर lady, you know, स्कूल में भी बहुत मस्ती, झूठ बहुत बोलती थी, मजाक, you know, मजाकिया. चल झूठ बोलती थी, वो क्या कैंसर होगा? I say, yeah. And she came to meet me. She said, don't worry, for chemos I'll come with you all the time. Don't worry. Let your husband look after your mother. And whole chemo mein, the journey was very enjoyable. Party time it was, hospital mein. I started doing all the makeups, bandana, different type of kajal, makeup, सब YouTube में सीख लिया मैंने, जिंदगी कैसा जीना है. And I thought मैं जिंदगी में कुछ बनूंगी और लोगों को बताऊंगी मैं कैंसर वाली नहीं हूँ. I am a survivor. I can do this. I can do. सब मैं सपने देखती थी, नो, आज ये बनूंगी. Let people look at me कि ये अंजलि है, देख कैसा बन गई करके. And the chemo was very nicely चला गया. Selfie time, मस्ती time. And one fine day, my last chemo time, it was a 4-5 घंटे का chemo था, काफी टाइम था, but closing time था. So my friend's husband called, तू घर पे नहीं है, रात के 10 बजे, तू कहाँ पे है? She said to husband, अंजलि का chemo चल रहा है, आज खत्म नहीं हुआ. Normally we used to come at 8 o'clock at home back. She used to drop me. This time her husband called her, Sujata, where are you? 10 बज गए. They say last chemo है. And I say tata bye to all hospitals and everyone. चलो bye. Reception पे फोन किया, हम चल रहे हैं. He came home. मैंने गाना गाया, आज मैं ऊपर. With my husband I sing the song with the board, you know, last chemo board अभी भी मेरे पास है, you know, memory that. And we came home, everything was fine. Now doctor say you have to go for the radiation. Oh my God, एक और shock मुझे. Radiation means what? मुझे लगा welding जैसा जला देंगे मुझे पूरा. Very much scared. I went to Nanavati hospital. किसी के थ्रू मैं गई वहां पे. With my bandana, goggle, makeup, से मस्त होके गई. But I saw the patients सब थके मांदे बेचारे. You know, radiation उनकी तो एकदम लो होती है सब चीज. And very much terrific time था उनका. Then doctor ने मुझे देखा और उन्होंने कहा no radiation for me. वो जो खुशी का tears मेरा निकल गया ना, मेरा journey खत्म. Now I have to take myself, you know, take care of myself. Then I came out. खुश हो गई कि मुझे रेडिएशन नहीं है, सब कुछ अच्छा हो गया. Then what? Now what? अब क्या करना है जिंदगी में, करना क्या है मुझे? बाल तो नहीं है सिर पे. Then my son took me Sunburn Festival, गोवा ले गया मुझे घुमाने के लिए. There I saw all taklas are there, you know, all fashionable. They are not chemo people, they are normal people. I removed my bandana और एक participant competition में चली गई मैं डांस का. With that short छोटे छोटे बाल से, and I got the 3rd prize. That was a boosting me, you know. Yeah, Anjali, you can do many things. और when I came back to Mumbai, मेरे husband ने दरवाजा खोला, बोले अरे स्कार्फ कहाँ गया? ऐसे स्कार्फ गोवा में फेंक दिया मैंने. This is my style now. And lovely journey was so good and positive, very positive.
कीमो यहाँ चलता था और हम यहाँ पे मस्त खाना खाते थे, घर का खाना, यू नो, लाइक अ पार्टी. मी एंड माय सुजाता, वी यूज्ड टू ईट फूड देयर एवरी डे, हर कीमो में. वी एंजॉय दैट. उसके बाद अच्छी जिंदगी चालू हो गई, सोचने लगी क्या करना है, क्या करना है, यू नो. So my motivation is the people, you know, chemo is nothing and cancer is nothing. कैंसर के सामने जो CAN है ना, उसको तुम पकड़ के रखो, सर को निकाल दो. I can, remember I can do anything. जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है you can't do. If you think I can't do, नहीं कर सकोगे. Everything you can do. Every problem has a solution. I always say, कोई भी problem solution तो निकलता ही है. और डिसऑर्डर्ड नहीं होना है. बाल चले तो कुछ नहीं होता है. मेरे भी आईब्रो चले गए थे. आई नाइस पेंसिल का अभी भी करती हूँ मैं, बहुत नखरे वखरे करती हूँ मैं, ज्यादा ही करती हूँ. उस टाइम भी करती थी मैं. सो डोंट वरी माय कैंसर पेशेंट, नथिंग विल हैपन. ये एक बुखार है, यू नो, बुखार 3 दिन होता है. ये हमको 1 साल की जर्नी होती है. देन यू विल ग्लो लाइक एनीथिंग, यू शाइन लाइक एनीथिंग. दिस इज योर सेकंड लाइफ, यू विल एंजॉय दिस लाइफ एनीथिंग. और जब पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, मुझे याद आता, अरे यार वो टाइम पे मेरे टकले बाल में बहुत सारे फोटो निकालने थे, अरे मुझे ये करने थे, मुझे ये मॉडलिंग करने थे. वो टाइम पे ख्याल नहीं आता है, बट यू ऑल डू दैट. माय कैंसर पेशेंट, यू ऑल डू दैट बिकॉज दिस मोमेंट विल गो, दिस टाइम विल पास, लेकिन वो मोमेंट वापस नहीं आएगा. सो एंजॉय ऑल कीमो सेशन, एंजॉय ऑल डेज एंड कम बैक, कम गो फ्रेंड, आगे आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ. लाइफ इज टू मूव ऑन. And why when we are getting award, we are not asking why me? We are not asking why me. जब कैंसर होता तो हम पूछते हैं why me? Don't ask that. होता है. Wow, very true and such a positivity when you started sharing. मैं ये सोच रही थी कि ऐसा भी होता है क्या कि नो सुसाइड कमिट करने का मन करता है कि नहीं बहुत हो गया, साइड इफेक्ट्स इतने हैं, और बट देन द वे योर जर्नी टुक अ टर्न, दैट्स रियली इंस्पायरिंग. एंड आई एम श्योर कि काफी लोगों को के मन में ऐसा आता होगा. इनका काफी लोग ट्रीटमेंट छोड़ भी देते हैं अपना बीच में, क्योंकि फॉर सो मेनी रीजन कि वो अपने घर वालों पे बर्डन नहीं बनना चाहते हैं, या फिर वो सोचते हैं अच्छा अभी तो एज हो गई है, 60-70 के हो गए हैं तो नहीं करना है ट्रीटमेंट, और साइड इफेक्ट्स भी होंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान दें या फिर ट्रीटमेंट पे ध्यान दें, वैसा करके. बट yeah, so if I know and I the way your journey transformed after that, it's really wonderful. And the way you took the best part what I liked in your journey was कि आपने जितना उसको positively लिया, कि you were enjoying even when you were taking chemotherapy, you were celebrating your life every single time you were eating and celebrating with your friends as well. And probably that matters a lot when we are going through the journey, because जो इमोशनल वेलनेस होती है, जो मेंटल पावर होती है, जो विल पावर होती है, वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है. और ये तो बीमारी तो हो गई है और अभी इससे तो निकलना ही है. और मैंने हर बार यही देखा है, जिन भी लोगों ने इसको पॉजिटिवली लिया है और एकदम स्ट्रांग विल पावर करके कि नहीं आई विल गेट थ्रू इट, वो लोग उसको बहुत अच्छे से निकाल भी लिए. चाहे वो 3 बार आया, चाहे वो 4 बार आया, चाहे डॉक्टर ने बोला 2 महीने ही क्यों नहीं आपके पास में, बट स्टिल दे आर विद अस फ्रॉम लास्ट 10-12 years. So that's really a blessing, Anjali, and thank you for sharing that. And आपका, so Anjali, before your cancer diagnosis happened, आपका life कैसा था और आपका thought pattern कैसा था? How was your behavior, and how this journey has transformed that? Yeah, but I'll tell you I don't want to share my childhood story because I born and brought up in orphanage. वो story एकदम अलग है. And when I came to my parents, I was 9th standard. पढ़ाई में एकदम डल थी मैं. I was duffer in studies. मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था, बस डांस करो और कुछ, क्योंकि बोर्डिंग में डांस ऐसे I was boarding in Calcutta, तो रविंद्रनाथ टैगोर की डांसेस वगैरह वो वेरी ग्रेसफुली आई टू डू. स्टेज परफॉर्मेंस होता था, तो आई यूज्ड टू लव डांस. फर्स्ट स्टैंडर्ड में 3 बार फेल हो गई, 4th में 4 बार फेल हो गया. आई टेल माय स्टोरी. मैं एकदम डफर, मुझे बुक पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता था. व्हेन आई केम होम आई वाज वेरी मच डफर, खाली डांस करना अच्छा लगता था. और हेलन की डांस बहुत देखती थी, मुझे बहुत पसंद था हेलन जी. इतना मैं सोचती थी एक बार मैं भी स्टेज में डांस करूं, लोग मुझे देखे. आई यूज्ड टू ड्रीम लाइक दैट कि मैं ऐसा कुछ करूं, लोग मुझे देखे. बिफोर कैंसर आई वाज वेरी हाई टेम्पर एंड मस्ती वाली, जिंदगी को मस्ती में लेती थी. नो डाउट मैंने अपना फैमिली को समेट के रखा, बच्चों को पढ़ाया, दे आर इन वेल टू डू पोजिशन एंड ऑल, मदर इन लॉ को भी देखा. लेकिन एक मन में रहता था मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है. मेरा डांस में कहाँ बताऊंगी, मेरा एक्टिंग में कहाँ बताऊंगी. आफ्टर कैंसर मैंने पूरा पैशन जो था, एंड आई थैंक टू गॉड दैट आई एम ए कैंसर सर्वाइवर. अच्छा हुआ मुझे भगवान ने कैंसर दिया, क्योंकि अभी मेरी जो लाइफ है आई एम एंजॉयिंग. बिफोर दैट आई वाज नॉट एंजॉयिंग, I was killing my time. But now
आई एम लाइक अ सेलिब्रिटी, मैं और कोई सेलिब्रिटी को देखती नहीं है. आई एम ब्यूटीफुल, आई नो माई सेल्फ, मैं बहुत अच्छी हूँ. मुझे दूसरे को देखने, आई डोंट वांट टू सी कैटरीना कैफ और एनी, बट मैं अपने आप को अच्छा समझती हूँ. और मैं भगवान को इतना शुक्रगुजार मानती हूँ कि भगवान तूने मुझे कैंसर दिया, ठीक किया, मैं उसमें से निकल गई. दैट वाज माय एग्जाम टाइम, दैट वाज माय रियल एग्जाम टाइम. आई क्रैक इट आउट वेरी नाइसली. माय सीटी एग्जाम था, मैं क्रैक करके निकल गई. और आज मैं सेलिब्रिटी जैसा डांस करती हूँ, प्ले करती हूँ, जो मन में आए सब कुछ करती हूँ. मैं with my husband's support, I'm doing everything. So I thank to God, you know, I'm a survivor because I learned the life, what is life. कौन मेरा है कौन पराया है वो भी मैं समझ गई. कौन मुझे कितना प्यार करता है. फाइनेंशियली वी वर वेरी वीक दैट टाइम. मेरे हस्बैंड को गांव का जगह बेचना पड़ा क्योंकि मेरा मेडिक्लेम खाली 3 लाख का था. आई ऑलवेज टेल ऑल द पीपल, यू नो, डू मेडिक्लेम. मेडिक्लेम करके रखो. कभी मेडिक्लेम से भले तुम यूज करो कि ना करो, बट यू ऑलवेज टेक मेडिक्लेम. बट हम उसमें से निकल गए. आज हमारी स्थिति ऐसी है, हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं. आई कैन हेल्प अदर कैंसर पेशेंट क्योंकि मैं समझती हूँ उनका दुख. ये एक कीमो का पैसा नहीं होगा ना आपके पास, आपकी पूरी दवा पानी रुक जाएगा. द पेशेंट में डाई, यू नो, आई डोंट वांट टू से डाई टू माय पेशेंट बिकॉज माय फैमिली इज कैंसर फैमिली. इसका मतलब ये नहीं मेरे फैमिली में कैंसर है. आई एम बिलोंग फॉर द कैंसर पेशेंट्स एंड माय सर्वाइवर्स. उनके आंखों में आंसू मैं देखना नहीं चाहूंगी बिल्कुल. आई कैन हेल्प इट आउट मुझसे जितना होता है क्योंकि मेरे टाइम पे कोई हेल्प नहीं किया मुझे. बट आई नो देयर प्रॉब्लम्स, व्हाट दे फेस, हाउ आई फेस, दे शुड नॉट फेस. बिकॉज इफ यू लव समवन, इफ यू हेल्प देम, तो उनका 90% बीमारी चली जाती है. 10% आपको खाली दवा से ठीक करना पड़ता है. आई बिलीव दैट. आई गो टू कैंसर पेशेंट्स, आई मीट देम, आई हग देम. मैं ऐसा नहीं कि बिल्डिंग वाले से मिलती हूँ, झोपड़े में रहते उनको भी मिलती हूँ, उनके साथ मैं चाय भी पीती हूँ, उनको हक करती हूँ. भले कोरोना का टाइम है, हक देम, आई लव देम लाइक अ मदर, लाइक अ ब्रदर, लाइक अ सिस्टर. उनको प्यार करती हूँ मैं. उनका मैं बहुत नोटिस की है, जितनी उनकी बीमारी है ना 50% खत्म हो जाती है प्यार मोहब्बत से. एंड दे थिंक, अरे अंजलि नहीं आई, अरे अंजलि नहीं आई, कभी आ रही है, कभी मैं बोली मैं आ रही हूँ, आज जरा बिजी हो, आ रही हूँ. एंड दे हग मी लाइक एनीथिंग. अगर मैं उसको 15,000 भी दूं ना, उनके आंखों में इतनी आंसू आ जाते, उनको लगता है 15 करोड़ मिला. यू नो, दोज आर वेरी पुअर, दे कांट अफोर्ड. वो आंसू में देखना नहीं, खुशी के आंसू में देखूंगी. लेकिन कोई एक कैंसर पेशेंट मरता है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी. आई विल डू हाउ मच आई कैन डू. लाइक, यू नो, मैं ऐसा नहीं बोलती पूरा खर्चा दूंगी, बट सम पार्ट आई कैन हेल्प क्योंकि टुडे आई कैन अफोर्ड. यू नो, भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है, इतना कुछ दिया है, तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ. और एक चीज पेशेंट्स को कहना चाहूंगी, स्टिक टू वन डॉक्टर, डोंट कीप ऑन चेंजिंग द डॉक्टर्स. बहुत गलती करते हैं सभी, क्योंकि एडवाइस देने वाले बहुत आते हैं आपके घर में. दे विल टेल ये करो, गाउटी दवा करो, एंड वो पेशेंट बेचारा चला जाता है. प्लीज डोंट डू दैट. स्टिक टू वन डॉक्टर, क्योंकि ये टाइम डॉक्टर ही हमारा भगवान है. He will guide you, he will say everything. आज मेरे पास इतनी डॉक्टर्स है, यू नो, मेरे डेंटिस्ट है, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट है, मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट है, मेरे सर्जन है, मेरे फिजिशियंस है, ऑल लाइक माय फ्रेंड. यू नो, इतने लोगों से मैं घिरी हुई हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे राइट टाइम पे हेल्प किया. सो माय पेशेंट्स, डोंट चेंज द डॉक्टर्स एंड डू योर मेडिक्लेम. डोंट गो फॉर गॉसिप. मेरे ये चले जाएंगे, मेरा क्या होगा. कुछ नहीं होगा. देखो मेरे कितने लंबे बाल है, आई गॉट अ लॉन्ग हेयर. डोंट वरी अबाउट द हेयर एंड. हमारी सांस चल रही है ना, श्वास चल रही है, दैट इज मेन थिंग. यू आर लिविंग ऑन द अर्थ. और जितने भी सेकंड लाइफ सर्वाइवर्स, उनको ये कहना चाहूंगी, थिंक दिस इज योर सेकंड लाइफ. पहले लाइफ में तो हमने कुछ किया ही नहीं, छोड़ दो. ये लाइफ में इतना कुछ करो कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें. एंड डू योर पैशन, व्हाटएवर, राइटिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, टीचिंग, जो अच्छा लगता है करो. उससे कोई कैंसर वापस नहीं आएगी, रिलैप्स नहीं होगा. एंड यू बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज. हंसते रहो, मेकअप करो, स्टाइल बनो, सब कुछ करो. जब तुम निकलो ना तो कोई देखे, वाओ शी इज गोइंग, व्हाट अ लेडी शी इज गोइंग, दिस एज आल्सो शी इज गोइंग, ऐसा बोलना चाहिए. मैं यही कहना चाहती हूँ, शर्माओ मत. बिकॉज समाज विल नॉट कम टू यू, हेल्प यू आउट. समाज तो बहुत कुछ बोलेंगे, हमने आपने समाज बनाया. डू वॉट एवर यू लाइक, बट डू एक्सरसाइज, ईट गुड फूड, and keep smiling and keep many friends. Friends means the friends who will help you always, not for the gossip, not for the party. Remember that. रात को 12 बजे भी फोन करते, she should come to you and you learn positivity, spread positivity with your friends.
Wow, very true. आपने जो भी बताया, especially I like your expressions. तो ऐसे लग रहा है कि हाँ, I can, like grasp everything what you are saying. So I think probably you got this from your acting. So it's really, even I can see you, like you are in that moment already when you are sharing this experience, and I think it helps a lot going through that journey. काफी ज़्यादा help करती है सब चीजें. And expressions, and there are in fact therapies है इसके ऊपर, expressive art therapy, जिसमें लोग अपने आप को express करते हैं, लिख करके, बात करके. So I'm sure your passion must have helped you a lot in going through your treatment, your diagnosis, and God grace you are here with us. And we all have to find our purpose of life. कि जब ऐसा कभी होता है तो इनफैक्ट yesterday I had a session with IIM Visakhapatnam, and मैं स्टूडेंट्स को वही बता रही थी कि we call this 7 healing wellness framework, कि आप कुछ भी एक हैबिट चूज करो, pick it and stick to it. So it's like eating well, moving more, sleeping well, managing stress, creating a healing environment, sharing love and support, and finding purpose of life, so exploring what matters to you now. So I think in your journey, a lot of factors came into play for your healing, for your recovery, for your cure. And जो आपने बताया कि finding purpose of life, या फिर आपके लिए क्या matter करता है. So self importance, self care is paramount in cancer diagnosis, cancer treatment. And in fact जो लोग अभी जर्नी से निकल भी रहे हैं, I would like to tell all of them कि अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी दो, सेल्फ केयर पे, सेल्फ लव पे, कि ये जो ये मेरी लाइफ है, क्योंकि आपके you love your loved ones and they love you, and you will be able to love them more only when you will be here on this earth, right? तो उसके लिए फिलहाल आपको अपने आप पे ध्यान देने की जरूरत है. So how you found out your passion and you continued with it, and it came as a blessing in your life, कि आपको अपॉर्चुनिटी मिला अपने पैशन पे काम करने का. So and through that I think you found your purpose कि मुझे वापस से सारी चीजें करनी है. So really very very impressive, Anjali, very very impressive. So did you make any, so when you're going through the journey, आपने उसके दौरान या उसके बाद में did you make any lifestyle changes also in your everyday's lifestyle? Yeah. Before that I used to not do so much exercise and all. After that ये पोर्ट वगैरह निकल गया, पोर्ट was there, so I can't do all the exercise and all. उसके बाद मैंने every day morning I'll do all type of exercise. पहले मैंने जिम ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे मजा नहीं आया उसमें, बिकॉज यू हैव टू कीप इंस्ट्रक्टर और कोई आपको गाइड करेगा. आई डोंट लाइक दैट. मैंने खुद अपने से सीख लिया मैंने कैसा अपने वो हलासन करना, एक्सरसाइज करना, स्पेशली ब्रेस्ट का एक्सरसाइज. माय डॉक्टर टॉट मी हाउ टू डू शोल्डर मूवमेंट, पाव को ऊपर करना, स्प्लिट करना. दिस ऑल द थिंग्स आई डू एवरी डे. मॉर्निंग करना ही करना है, कैसे भी करना है, इवनिंग में भी करना है 1 घंटा. फिर मेरा डांस प्रैक्टिस होता है, उसमें भी बहुत एक्सरसाइज हो जाता है. That all the things. खाने में बहुत ध्यान रखती, पहले नहीं रखती थी. I used to eat outside food, cheese, वो ये everything, Chinese वगैरह. I stop everything. घर का रोटी, दाल, भात, सब्जी, और not only गेहूं का रोटी always. एक दिन बाजरा का रोटी, जुआर का रोटी, one day मकाई का रोटी, and one day रोटी, गेहूं की रोटी, and दाल, सलाद, दही, छाछ या गुजराती फूड पूरा. I have all food. फिर दोपहर को morning I have काढ़ा पीती हूँ, अभी भी काढ़ा पीती हूँ मैं. And I have thyroid. After operation I got thyroid. तो thyroid की गोली 4 बजे उठ के खा लेती हूँ सुबह. Oh. I have to eat because gap चाहिए ना, सुबह में फिर लेट उठता तो गैप नहीं होता है, तो 4 साढ़े 4 को खा लेती मैं. फिर थोड़ी देर आराम करती हूँ, लेटता हूँ, उठना बेटर. देन आई डू माई एक्सरसाइज, देन आई माई काढ़ा. फिर मैं चाय छोड़ दी, सुबह चाय नहीं पीती हूँ. आई ईट माई राब, घर का बनाती हूँ. उसके बाद एक जूस पीती हूँ, गाजर बीट. आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट 6 years ये गाजर का जूस पीती हूँ. Yeah. And I don't do anything about never play with anything with my skin. Skin से कभी नहीं खेलती because I have pigmentation after my cancer. So I went to my dermatologist. उन्होंने बोला ये नहीं करना अंजलि, क्योंकि after that again you will come back. So उससे अच्छा 2 इंच का मेकअप कर लेना, सब ढक जाता है. It's okay. I do makeup ज्यादा लगा देती हूँ. And evening I have 4 o'clock tea. 1-2 बिस्किट खा लेती हूँ. Then 7:30 again वैसे ही खाना, या तो खिचड़ी, दही, लाइट खाना, और सोने के पहले हल्दी वाला दूध, and go to sleep. This is my routine. I change पहले से अभी. And if I am out also with my friends, अभी मैं last week पार्टी में गई थी, तो I eat only रोटी सब्जी. That's all. रोटी सब्जी दही. उन लोग को जो खाना खाओ, चाइनीज है, I will not. No sweets. I love the sweets. Yeah.
वो भी छोड़ दिया मैंने. Okay. But this helps a lot, making lifestyle changes. अंदर से internal healing होती है body की, और at least you are eating good that is feeding your body, and that fights with cancer also. It reduces chances of recurrence also, and it improves your chances of cure at the same time. So it's a good message that you have shared. And for you, आपका I think सारा चीजें ही आ गया था इसके अंदर, because आप you were eating well, you were also doing exercise in the morning, you were waking up early, and उसके लिए शायद आपको जल्दी भी सोना पड़ता होगा. और नहीं जल्दी नहीं सोती, 12 बजे तक मेरा शूट चलता है. ओके ओके, ऑलराइट. शूट एंड यूट्यूब में सब डालते रहती हूँ. कभी बेली का हुआ, फोक डांस का हुआ, कभी ऐसे ही माधुरी का डांस कर लिया. कुछ कुछ मन में आता है, आज रात को मैं ये करूंगी. माय हस्बैंड इज टू गुड, हम दोनों ही हैं, के बच्चे बहुत अलग रहते हैं, तो ही इज रेडी विद माय मेड अ होम स्टूडियो, लाइक होम थिएटर बना दी मैं, कर्टन मटन डाल के. सो आई डू दैट. तो थक जाता है, क्योंकि पैशन है ना, पूरा करना है, तब तक नींद नहीं आती है. फिर सो के उठ के बैठ जाती हूँ मैं. तो इनको बोलती, अरे कल के लिए कॉस्ट्यूम मुझे याद आ गया, मैं अभी निकाल के रखती हूँ. ही सेड नाउ यू गो टू स्लीप. 12 बज गया. मैं बोली नहीं मैं निकाल के रखती हूँ, तभी मुझे ऐसा लगेगा आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एंड वेल व्हाइल स्लीपिंग आल्सो दिमाग में वही स्टेप्स याद आ रहे हैं. इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये रहता है ना, क्रेजी बोलते ना एकदम. हाँ मुझे सुबह करना है, प्रैक्टिस करना है. इवन आई वो फॉर शावर, बोलती ये स्टेप नहीं आ रहा, शायद ऐसा होगा. शावर इज गोइंग ऑन, आई डू दिस. ये ऐसा था क्या, ये हाथ ऐसा था क्या, राइट. एंड आई डू 100%. वॉट एवर आई डू ना, मेरा एक है, करो तो 100%, अदरवाइज डोंट डू. नहीं तो जाओ मत, तो चीज के अंदर जाओ ही मत, आप ढल जाओ उसके अंदर. पीपल शुड से हाँ इसने किया, बहुत अच्छा किया. I don't have one breast, very frankly, right? I'm operated. Then too, I do belly, and my fingers are fold. You can see my fingers. My wrist is locked. I can't move this. फिर भी मैं folk dance में, you believe I got first prize in district level. Oh. Folk dance में, So that is amazing. मैं सोचती हूँ, अरे क्या हो गया, हाथ टेढ़ा तो क्या हो गया, मैं स्टेप तो कर रही हूँ ना. एंड दे डजंट नो, उनको नहीं पता मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ कि मेरा हाथ लॉक है. मैं कुछ बताती नहीं हूँ, मैं मेरा वीडियो क्लिप उनको भेज देती हूँ. दिस इज माय एज क्राइटेरिया, ये है, और कभी आपका लाइव मुझे बता दो, तो बोलते आज का दिन लाइव है, उन लाइव लेते हो लोग, तो मैं रेडी रहती हूँ. बट आई नेवर फाउंड एनी मिस्टेक कि उन्होंने बताया कि तेरा हाथ मूवमेंट ठीक नहीं है. बाद में मैं उनको बताती हूँ मेरा हाथ लॉक था. बोलता मैडम हमको पता ही नहीं चला, आपने कितना अच्छा किया. दैट इज द स्पिरिट, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, अरे मैं तो और भी कर सकती हूँ. So never think कि हमारे शरीर में एक पार्ट नहीं, हम नहीं कर सकते हैं. Everything we can do, मन में होना चाहिए, I will do. You can do it. Wonderful. कोई भी चीज हो, आप सोचो मैं करूंगी तो हो ही जाएगा. Yeah, very nice. How your friends describe you, Anjali? Oh my God, मैं नाटक करती हूँ ना रोने का, अभी मैंने डाला है. मुझे अंजलि तू रो मत यार, मुझे नहीं, तू रोना ही डालती, क्यों रोने का क्यों डालती तू. मैंने बोला अरे एक्ट है, वो सोलो एक्ट करती हूँ मैं. मेरी विभा जी मेरी गुरु है, उन्होंने सिखाया मुझे. तो बोलते अंजलि तू रोने का मत कर, तू हंसने का करना, तू हंसते हुए अच्छी लगती है. एंड जैसे यू आर सो लाइवली, तू इतनी बिंदास है, तू डरती नहीं है. मैं बोली क्यों तुम ऐसे बोलते तू कितनी बिंदास है. आई एम वेरी ओपन, नथिंग टू हाइड, वेरी ओपन. सो दे लव्स मी, और मेरे बगैर चलता ही नहीं है. अभी हमारी ग्रुप होती है ना पार्टी के लिए, तो अंजलि नहीं आएगी तो हम लोग नहीं आएंगे. आई डू लॉट ऑफ मस्ती, इतना मस्ती करती हूँ ना, वो मोमेंट को ना मैं एंजॉय करके सबको एक मेमोरी देके निकल जाती हूँ. Wonderful, yeah. Thank you for sharing this, Anjali, and I'm sure हम लोग भी आपको बहुत याद करने वाले हैं, because you are leaving a deep impression whoever you meet with your journey, with your positivity and your expressions and many other things. So, and a lot of struggles also. It's not like that you had a very smooth childhood or smooth young age or smooth this part of journey as well. It was struggling always, but then you always turned that struggle into an opportunity. And ultimately, that's how we live this life. Stress, struggling times, down times are bound to come, because life में कभी हमेशा up situation नहीं रहती है. But then how do we take that down times also? How do we live that? How do we come out of it? How do we look towards positivity during that time also matters. And that's how you took this positive outlook towards your life. And that's what I admire the most in you. So thank you. और मैं शेयर करना चाहती हूँ मैम कि मेरा एक दिन भी नहीं जाता मैं अंजलि के साथ बात नहीं करेगी.
क्योंकि अभी मेरे घर में भी ऐसा सिचुएशन है कि मेरे हस्बैंड की अभी मौत हो गई है। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मैं दिन भर कभी भी उसको फोन करती हूँ और मोटिवेशन लेती हूँ। अच्छा, तो वाह. आरती, Okay, so Aarti, sorry to hear about your husband, and I hope you are doing well now. So Aarti, आप अंजलि को कैसे डिस्क्राइब करोगे अगर आपको करना है तो? लाइव पर्सनैलिटी, क्योंकि वो सबको मॉरल सपोर्ट देती है। मेरे को तो इतना देती है क्योंकि मेरा स्वभाव एकदम अपोजिट है। मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ हर चीज में, तो मैं उसके साथ बात करती हूँ कभी भी, दिन में, रात में, कभी भी। अंजलि आज ऐसे हो गया, क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया है, चुप बैठ, ऐसे वो मेरे को ये करती है। Really, good to know that you both have each other support and काफी मैटर करता है. दोनों मिलके डांस करते हैं, बाकी सब उसके साथ में जाऊंगी ना तो मैं चीयरफुल रहती हूँ। Right. Okay. Thank you. तो अंजलि, wanted to ask you कि जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था एंड अभी काफी लोग ट्रीटमेंट से ऑलरेडी निकल रहे हैं जो इस कॉल पे भी है और जिनका इधर पेशेंट और केयर गिवर्स दोज हु आर गोइंग थ्रू द जर्नी करंटली, तो क्या होता है कि एवरीबडी इज नॉट इन दैट माइंड जोन हाउ यू वर एट द लेटर फेज ऑफ योर जर्नी, राइट? आप कितना ही बोल लो कि पॉजिटिव रहना है, वैसे है, बट स्टिल समहाउ वो नेगेटिविटी और डिप्रेशन और सैडनेस आ ही जाती है. इट्स बाउंड टू कम एंड इट्स वेरी नेचुरल टू कम. इनफैक्ट नितेश को भी जब वो ट्रीटमेंट ले रहा था तो ही वॉज वेरी इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड लाइट नहीं चाहिए, फोन का साउंड नहीं चाहिए, मतलब फोन हमेशा ही सुपर साइलेंट रहना चाहिए, वाइब्रेशन भी नहीं चाहिए, और काफी मतलब ऐसा था, बात नहीं करना है, अंदर ही अंदर रहना है, शेयर नहीं करना है कुछ भी. तो इट्स एंड वी अंडरस्टैंड इट हैपेंस. तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे दैट हाउ कैन दे कोप अप विद दिस? या आई टेल यू समथिंग, जो पेशेंट जब इस दौर से गुजरता है, आई नो इट इज वेरी टफ टाइम फॉर देम. वी सेइंग इज पॉजिटिव, बोलना तो बहुत आसान है लेकिन सभी नहीं कर सकते. आई नो दैट, आई बिलीव दैट. मेरा कहने का मतलब ये है, व्हेन यू आर इन ट्रीटमेंट के समय में अगर आप बहुत सोचोगे और किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करोगे तो क्या हो जाता है, यू नो, वो अंदर दब जाता है. द थिंग्स व्हाट यू वांट टू शेयर विद समवन, आपको आवाज नहीं अच्छी लग रही है, लोग नहीं अच्छा लग रहा है, अकेला रहना चाहता है, डिप्रेशन हो जाता है, राइट? दैट टाइम यू शुड हैव वन फ्रेंड और एनी फैमिली फ्रेंड, या मुझे भी फोन करो, यू शेयर विद देम कि मुझे तो कैसा हो रहा है यार, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है यार, क्या करूं मैं, क्या करूं? तो दे विल गाइड यू. किसी से बात करो, ओपन हो जा. आई विल टेल यू व्हाई आई गॉट कैंसर टुडे. यू वांट टू नो माय रीजन व्हाई आई गॉट कैंसर? आई डोंट वांट टू क्राई, लेकिन मुझे दुख होता है. मेरे यंग एज में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है जो मैंने अंदर दबा के रखा. आई कुडंट शेयर विद एनीवन. और जब मैं ससुराल में भी आई, I share with my husband. He was very good to me. He got married with me. जब भी मैं रोटी बनाती थी, I want to tell all the cancer patients, listen to very carefully. जब मैं रोटी बनाती थी तो मेरे tears पड़ते थे. I don't want to spoil my makeup. I'm beautiful. तो मेरे tears गिरते थे. मेरी मदर-इन-लॉ बैठी रहती थी, सिस्टर-इन-लॉ, मैं किसी को नहीं बोलती, दबा के रखती थी अंदर में. मैं और मेरा हस्बैंड बस, nobody else knows the story what happened to me. It was a very bad period for me. और जब वो दबते गया तो एक ग्लैंड बन के बाहर निकल गया क्योंकि I couldn't share. इतनी बड़ी इंसिडेंट किसी ने, कोई नहीं निकला होगा इस इंसिडेंट से. It was terrific for me. लेकिन जब कैंसर से मैं बाहर निकल गया, I'm very happy. I will not keep anything in my heart now. I share with everyone. No shame for me. Yes, I don't have breast. It's okay. I'm a survivor. Yes, my hands are full. I can't drive. It's okay. I'm a survivor. I'm a fighter. I'm a winner. You know, इसके लिए कभी भी no, don't keep anything in your heart. Please share. Please share. All my patients, I'm telling you. I never cry, लेकिन मैं मेरे खास पेशेंट के लिए बोल रही हूँ. This is not my sadness का tear. This is एक memory है. You know, now it is open. I share with my friends. मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ठीक है ना, हुआ था, हो गया, खत्म हो गया. I'm not looking back.
because I got one lesson. If you keep anything in your mind, in your heart, it comes as a, gland. It comes as a gland or blood cancer or any disease. So throw it out. Friends, throw it out. Share with someone whom you love and keep secret. Tell them, don't spread this to anyone. You will come out from the life. Really, I'm telling you. Yeah. दिल में कुछ भी नहीं है. I'm बिंदास. मैं बिंदास लड़की हूँ. I'm a fighter. मैं झगड़ा भी करती हूँ, गाली गलौज भी करती हूँ, डांस भी करती हूँ, स्विम भी करती हूँ, डाइव भी करती हूँ ऊपर से नीचे. मुझे कोई चीज का डर नहीं है जिंदगी में. तब मैं डरती थी. एक डरपोक लड़की थी मैं. आज वो नहीं हूँ मैं. इसलिए प्लीज शेयर विथ योर पीपल हैप्पीनेस, और वो जो भी है मुझे कॉल करो. आई विल गिव द मोटिवेशन. रो मेरे पास, तुम बोलो क्या तकलीफ है, एंड एंजॉय योर जर्नी प्लीज. अगर आप अंदर रखोगे ना, यू विल नॉट क्योर. जल्दी ठीक नहीं होगा, टाइम लग जाएगा. उसको ठीक हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा. टाइम के साथ आपका मनी भी जाएगा, टाइम जाएगा, हेल्थ को इश्यू भी हो जाएगा. सो एनी पेशेंट्स, सर्वाइवर, दिल पे कुछ मत रखो. शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हैप्पीनेस इसको लो. काउंसलिंग में पूछो तुम क्या तकलीफ हो रही है, एंड लिसन टू द म्यूजिक. जो तुम्हारा पैशन हो करो. इट इज अ जर्नी, स्टार्टिंग जर्नी आपका जिंदगी का. इसलिए डोंट कीप एनीथिंग इन योर हार्ट. जो भी है आपने जिसका बताया, जो गाना नहीं सुनना चाहता है, जिसको अच्छा नहीं लगता है, प्लीज टेल हिम टू टॉक टू मी वंस. मैं बहुत प्यार से उसको समझा दूंगी, मेरे बच्चे की तरह समझा दूंगी मैं. लेकिन प्लीज दिल में कुछ भी मत रखो बच्चा. हम ओपन टू योर फ्रेंड, ओपन टू योर पेरेंट्स, व्हाटएवर. जो हो गया लाइफ में हो गया, लेकिन एक बार दिल खोल के बोल दो. एक बार वो निकल जाएगा ना, यू आर क्लियर फ्रॉम इनसाइड. इंटरनल आप क्लीन हो गए. इट इज बर्डन ऑलवेज. एक मौका आता है, अब मुझे याद नहीं आता वो इंसिडेंट, मैं भूल गई. गो टू हेल्प, मैं तो भूल गई वो चीज. सो बी पॉजिटिव. आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन करो. प्लीज ट्राई टू डू दैट. माई रिक्वेस्ट है. मैं हाथ नहीं जोड़ सकती क्योंकि मेरे हाथ टेढ़े हैं. आई जॉइन माई हैंड लाइक दिस. माई कैंसर पेशेंट, प्लीज शेयर एवरीथिंग विथ योर डियर एंड नियर वंस. आई एम टेलिंग यू, शाइन लाइक एनीथिंग. मेरे से भी अच्छा ग्लोइंग होकर आप लोग निकलोगे बाहर. हैप्पीनेस जर्नी होके निकलो बच्चे लोग. डोंट टेक एनी टेंस एंड एंजॉय योर जर्नी एंड कम आउट प्लीज. थैंक यू. इनफैक्ट मैं जिसकी बात कर रही थी वो आई विश मैं बोल पाती कि आपसे आके एक बार बात करे, बट ही इज नो मोर. ही वाज माय हस्बैंड. तो उनका वैसे बिफोर ही वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर, when he was my friend, that time and I did not know कि कैंसर क्या होता है, या फिर how your mental emotions, stress plays a very important role in your any disease for that matter, not just cancer. Now I understand the psychosomatic relation between mind and body. That time I did not. And then there was one time in his life when he was like in tremendous stress, सारे तरीकों से, मतलब फाइनेंशियली, इमोशनली, रिलेशन वाइज, एकेडमिक वाइज, स्टार्टअप वाइज. And he was a person who never shared anybody with any friends. And I met him when I was at IIM Calcutta, and this was first year, and he was completely occupied in his startup. So मैं कई बार बोलती थी, and I used to wonder that no, in college you have many friends, so why he is not like roaming with friends or spending time with friends, because he was all the time occupied in startup. And then as I got to know more about him, I got to know that he is struggling a lot from inside, and he was not even sharing many things with me. Like I tried to open a lot. I tried to tell that some of the things he shared with me very late, that too. But by that time I could see that the kind of stress he is taking, और कितना उनको प्रॉब्लम हो रहा है काफी चीजों से. और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था कि एक ह्यूमन उतना स्ट्रेस ले ही नहीं सकता है, कि आप कितना ही मेहनत कर लो. उस वक्त उस सिचुएशन में नितेश का जो सिचुएशन था कि वो कितना ही मेहनत कर ले, वो 4 चीजें एक साथ में नहीं सॉल्व कर सकते हैं. सो इट वाज डू और डाई वाला सिचुएशन उनके लिए. तो एंड देन उस टाइम पे भी ही वाज नॉट शेयरिंग दिस विद एनीबॉडी. फैमिली के साथ में नहीं, कोई बेस्ट फ्रेंड के साथ में नहीं. बेस्ट फ्रेंड उस वक्त तो उनके कोई थे ही नहीं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान कहीं और ही था उस वक्त. और अंडर ग्रेजुएशन में फ्रेंड्स थे अच्छे, बट देन ही चेंज्ड अ लॉट व्हेन ही वाज डूइंग MBA. तो वो उसके बाद में when everything got over, and then after 6 months he was diagnosed with colorectal cancer. And then they say that when you study psychosomatic relation of body and mind, they say that if you are
अगर आप अपने इमोशंस को विदहोल्ड करके रख रहे हो, अगर आप इमोशंस को, शेयरिंग को बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहे हो, then same emotions in the form of impurities gets collected in your colon, और वो फिर वो कोलन से बाहर नहीं निकलता है। तो लाइक हम लोग जब व्हेन पीपल वी पास स्टूल, सो वो उनका स्टूल पास होना बंद हो गया था। फॉर 3 months he was constipated because he was developing tumor in the colorectal area, क्योंकि वो इमोशंस के साथ में उनका बॉडी सिंक हो गया था। इमोशंस बाहर नहीं आ रही है, शेयरिंग नहीं हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, अंदर ही अंदर दब रहा है, उसी की वजह से उनका वो सिक्रेशन ही बंद हो गया। एंड देन लेटर ऑन व्हेन इट स्टार्टेड बिल्डिंग अप और फिर वो ब्लीडिंग हुआ, और तब पता चला कि इज ऑलरेडी इन स्टेज 3 एडवांस कैंसर। एंड देन वी डिड आई डिड लॉट ऑफ रिसर्च ऑन साइकोसोमैटिक रिलेशन। लुइस ए का भी बहुत अच्छा बुक है माइंड बॉडी का, वहां से पता चला कि women who take lot of stress has developed severe and severe back problems। तो इतना कि मतलब ऑपरेशन है वो सब भी होता है। तो इसका एक तो साइंटिफिक प्रूवन है बॉडी माइंड का रिलेशन। एंड अंजलि आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया कि how you also had similar kind of some struggle, some experience that you had, and then you were not able to share with anybody, and that again started building up, and then ultimately it popped out in form of the tumor maybe for you। So very important guys, very important message Anjali you shared, and it actually reminded me of my own journey with this कि important होता है कि आप share करें। And thank you for opening your heart to everyone when you said that कि किसी को कुछ भी बात करनी है तो मेरे से बात कर लो। So and everyone who is here, if you want to connect with Anjali, आप कभी भी please बता दीजिए, and we'll definitely yeah, so thank you so much Anjali for bringing up this। It's very important, जो लोग especially journey से निकल रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा important है। Thank you। So sorry to lost her. Thank you। Yeah, so Anjali, what message you would want to share with all the caregivers? Caregivers, प्यार से you love, give them lot of love to the patients, और उनको गुस्सा है तो आप गुस्सा मत हो, प्यार से मोहब्बत से गले लगा के अच्छी तरह उनको like a small, they are like a small kid now। कैंसर पेशेंट बच्चा ही होता है, न्यू बॉर्न बेबी की तरह है। सो टेक केयर देम, प्यार से उसको समझाओ उनका क्या है, उनके अंदर क्या है समझने की कोशिश करो। आई डू काउंसलिंग ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं करती हूँ। मैं समझना चाहती हूँ उनके मन में क्या है करके, आप समझो उसके दिल में क्या कहना चाहता है, आज वो दुखी क्यों है, आज कोई हंस क्यों नहीं रहा है, यू नोटिस इट, लुक एट देम, बिकॉज यू आर मीटिंग हिम एवरी डे, तो कुछ चेंजेस आपको दिखेगा उसमें, यू विल सी सम चेंजेस। सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस इज देयर, क्या हो रहा है उनके साथ, और उसको आप सॉल्व करो और पहले प्यार से मोहब्बत से उनको ठीक करो। या राइट, कई बार ये पेशेंट केयर गिवर की टसल हमेशा चलती रहती है when you are not able to understand them well, and हमें केयर गिवर्स के लिए भी टाइम लगता है क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा चेंज है ये। जिस तरीके के चेंजेस होते हैं कैंसर पेशेंट में, केयर गिवर के लिए वो ज्यादा बड़ा शॉक है डील करने के लिए कि हाउ डू आई नेविगेट थ्रू दिस नाउ। तो एंड उनको सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है इस पूरी जर्नी में। उससे पेशेंट काफी टाइम मैंने देखा है कि पेशेंट बहुत बिंदास होते हैं, दे टेक इट वेरी पॉजिटिवली एंड ठीक है अच्छे से अपना जर्नी, बट केयर गिवर्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। So caring for the caregivers is very very important। Yeah, and Anjali, gratitude seems to be the biggest strength to fight any kind of situation, and especially like cancer। So what were you ever so grateful for? मैं तो उन दोस्तों को, फ्रेंडों को बोलूंगी, थैंक्स बोलूंगी जिन्होंने मेरे लिए दुआ मांगी थी और जिसने मुझे नेगेटिव में चैलेंज भी किया था, शी विल नॉट क्योर, लेट्स सी, उसको भी थैंक यू बोलती हूँ मैं, बिकॉज उसकी वजह से मैं चैलेंज एक्सेप्ट की ना, अदरवाइज मैं ऐसी पड़ी रहती थी। हाँ उसने मुझे ऐसा बोला मैं करके दिखाऊंगी, एंड आई हैव डन दैट, एंड ऑल माय फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे, बेटे, बहू, सबने मुझे मदद, बहू नहीं सॉरी, बहू के आफ्टरवर्ड, बच्चे, जमाई एंड एवरीबॉडी। एंड आई वांट टू टेल माय कैंसर पेशेंट्स वन थिंग, जब तुम्हारा जर्नी खत्म हो जाता है ना कीमो का, रेडिएशन का, सो देयर इज अ न्यू लाइफ वेटिंग फॉर यू, न्यू लाइफ वेटिंग, व्हाट नाउ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जेंट्स हो, मेल हो, फीमेल हो, something is calling you, remember that something is waiting for you। भगवान ने आपको कैंसर दिया किसी वजह से दिया, पर्पस से दिया है। you always think कुछ मिलने वाला है मुझे, आगे कुछ मिलने वाला है, go for your passion, do it whatever you like। मैंने वही किया, फेसबुक पे ढूंढने लग गई, अब क्या, तो एक कंपटीशन आया था डांस का, तो मैं और आरती जी वहाँ वर्कशॉप में ज्वाइन हो गए। वैसे आरती जी मेरी फ्रेंड बन गई वहां पे, 5-6 साल पहले की बात है।
उसके बाद 1 साल तक हमने वर्कशॉप करते रहे, डांस वांस करते रहे। फिर मैंने देखा मिसेस इंडिया का कुछ कंपटीशन आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन मैंने विनीता श्रीवास्तव जी से, जो विजय मिसेस इंडिया है, उनको पूछा, बिकनी राउंड तो नहीं है ना मैडम? तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, 50+ वाले के लिए बिकनी राउंड नहीं है, 40+ वाले के लिए नहीं है। तो मैंने बोला बिकॉज आई एम सो एंड सो, खाली उनको ही बताया था मैंने। तो मैंने फॉर्म वॉर्म भर दिया। मैंने अभी डर रही थी ऑडिशन का क्या होगा, क्योंकि आई डोंट हैव एनी नॉलेज। मैं मस्ती वस्ती कर लेती हूँ, एक्टिंग ऐसा कर लेती हूँ, शक्ल वकल बना लेती हूँ, लेकिन जनरल नॉलेज तो कम है ना मेरे में। आई वाज अ डफर इन स्टडीज। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया, या यू आर सेलेक्टेड। आई वेंट टू दिल्ली। दिल्ली में 5 स्टार होटल में 3 दिन रहना था, सब करना था। और शूज लेके बड़े बड़े 4-4 इंच की, घर में सब प्रैक्टिस कर रही थी, मिरर देख रही थी। एंड यू नो दिस वाज ओनली फॉर मी, एक एक्सपीरियंस के लिए गई थी मैं। मैंने सोचा नहीं था मैं जीतूंगी। लेकिन मेरी एक फ्रेंड ऊपर रहती है राजेश्री, उसने क्या बोला, अंजलि तू जीत के आएगी। मैंने बोला क्यों? मुझे कैटवॉक तो आता नहीं है। मैं तो ट्रेनिंग देते हैं, तू जीत के आएगी। मैं बोलती हूँ तू जीत के। मैं बोला नहीं यार, मेरी शक्ल तो देख, कितने पैचेस है मेरे शक्ल, मेरे होठ कितने मोटे मोटे हैं, और मैं खाली स्टाइल से बात करती हूँ, लेकिन जो अच्छी अच्छी लड़कियां, हाइटेड वाली लड़कियां हैं, उनके सामने मैं कुछ नहीं कर सकती। बोले नहीं देख, तू जीत के ही आएगी। आई वेंट टू दिल्ली, हो गया। हमको अच्छा ट्रेनिंग भी दिया उन्होंने, सब कुछ दिया। वेरी हैप्पी। सो मेनी फ्रेंड्स आई मेड, डिफरेंट स्टेट से बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन आई वाज ओनली द सर्वाइवर। तो मेरे मन में मैं एक सपोर्ट ग्रुप में हूँ, डॉक्टर लोपा जी उसका प्रेसिडेंट है, ब्रेस्ट कैंसर हब करके है। तो मैंने उनको बोला मैम, डॉक्टर आप मेरे लिए 2 मिनट का वीडियो बना के डाल दो ना, कि उनको बताना पड़ता है इंट्रोडक्शन का क्या है। तो 2-3 जने डाला, उन्होंने भी डाला। तो बोला अंजलि यू विल विन, डोंट वरी, क्योंकि यू आर डूइंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांसेस एंड ऑल, आई कैन सी आल्सो। मैं पोल डांस भी की हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, आई हैव जॉइन पोल डांस आल्सो। उसके बाद मैंने बेली किया, उसके बाद मैंने फोक किया। अभी मैं तैशिन भी कर रही हूँ। तैशिन, पीपल थिंक इट इज रॉन्ग डांस, बट आई एंजॉय तैशिन, जो बम डांस हिला के, यू मस्ट बी नोइंग तैशिन डांस। उसमें जो मेरी स्वेट निकलती है ना, तो मेरे पूरे ब्लीच हो जाते हैं, मुझे ब्लीच करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू बिकम प्योर लाइक यू नो। बट आई एंजॉय दैट ऑल्सो। आरती जी भी कर रहे मेरे साथ, हम दोनों मिलकर करते हैं, हर चीज साथ में करते हैं। दिस एज ऑल्सो वी आर डूइंग तैशिन, एंड आई वांट इन फ्यूचर, मैं तैशिन की एक टीचर बनना चाहती हूँ इन फ्यूचर में, मे बी 70 ईयर्स में बनूंगी, कोई बात नहीं। एंड आई वेंट ऑन द स्टेज, बहुत डायना हेडन जी आई थी वहां पे, जजेस आए थे, राउंड 1 सब हो गया, आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन किसी को नहीं पता था मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, खाली हमारे जो ऑर्गेनाइजर उनको ही पता था। जब मैं स्टेज पे गई, यू नो हाइटेड गर्ल्स, मैं देख रही थी सबको लंबे लंबे नेल्स लगाए थे, मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे वेन जल जाएंगे। मैं आई वाज वेरी सिंपल, नेचुरली मेकअप वगैरह किया था। एंड व्हेन दे अनाउंस माय नेम, अंजलि गढ़वे, आर्यन रेड्डी, you know goosebumps I got, and I came on the stage and I said this is for my cancer patients and survivors, and listen to this, my all survivors, if I can do, you all can also do. इतनी मैं खुश हो गई ना, मैंने पहले लोपा जी को मैसेज भेजा, डॉक्टर लोपा, आई गॉट द क्राउन, आई गॉट द क्राउन, शैश एंड क्राउन, यू नो दैट वाज अ यू नो गूज़बम्प मोमेंट्स, प्राउड मोमेंट। अभी भी मैं देखती हूँ, कभी कभी पिक्स देखती हूँ, मैसेज, ओ माय गॉड मैं इसमें भी जाके आई हूँ, ओ माय गॉड मैं इसमें भी जाके आई हूँ। सो आई टेल माय कैंसर पेशेंट्स, वेट, आगे रास्ता बहुत लंबा है, मेनी थिंग्स यू हैव टू डू। भगवान ने प्लानिंग करके रखा है आप लोग के लिए, इसके लिए आप ये जर्नी में दुखी मत हो। कैंसर जब भी तो आपका कीमो वगैरह चल रहा है, आफ्टर कीमो यू आर गोइंग टू शाइन लाइक एनीथिंग, चूज योर पैशन एंड गो अहेड। और जहां जहां मैंने सोलो एक्ट किया है, आई गॉट द अवार्ड, आई गॉट द अवार्ड, एंड आई एम डूइंग ट्रू बेस्ड स्टोरीज। ऐसा नहीं कि कोई भी कहानी, ट्रू बेस्ड। एक तो मैंने खुद का स्टोरी डाला है, पीपल डजंट नो, लेकिन आज फिर जीने की तमन्ना है, मैंने खुद का डाला, आई गॉट अवार्ड इन दैट। उसमें भी मुझे स्टेट लेवल का अवार्ड मिला, आई एम सो हैप्पी। अभी मैं बताती हूँ, मेरा खुद का स्टोरी है वो। अभी मैंने कैंसर का नहीं, सॉरी एसिड अटैक सर्वाइवर का भी प्ले कर रही हूँ। आई एम डूइंग डिफरेंट प्लेस, लाइक यू नो एक डॉक्टर का भी किया। आई एम वेरी हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग। सो पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट, डोंट वरी, लंबा रास्ता आगे है, शाइनिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, मेनी डायरेक्शंस आर देयर, you all can go there and enjoy your passion और नाम कमाओ। मैं जैसा आज मैं हंस के बोल रही हूँ ना, आप लोग भी ऐसा हंस के बात करोगे, and you will say yes we got it, we got it. I want that because you all are my family, you all have to come up. Wow, thank you, very true, very true. And now we'd like to hear from others. Neha, would you like to share? Hi Dimple दी, hi Aditi जी। Hello dear. ये पूरे टाइम पे मतलब मैं सिर्फ स्माइल कर रही थी। मतलब मैंने इतने लोग देखे हैं, मैं खुद मुझे 5 साल हो गए हैं इस जर्नी से गुजरते हुए, बट मैंने इतना जिंदा दिली और इतना क्रेजीनेस किसी में नहीं देखा है सीरियसली।
और Thank you. ये एक बड़ा सा ताली। मतलब सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे आपका देखकर सुनकर, और बहुत मोटिवेशन मिला। और जो आप कह रहे थे फ्रेंड्स, तो मुझे ये चीज़ बहुत समझ में आती है कि जो कैंसर के बाद हम लोग जो फ्रेंड्स हमारे बनते हैं, जो इस जर्नी से जा रहे हैं, या जो केयर गिवर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, या जो भी हैं, उसमें हमें ये पता चल गया कि पहले हमने जो गॉसिप की हुई है, इस टाइम हम गॉसिप वाली फ्रेंडशिप नहीं होती है, हमारी कनेक्शन वाली फ्रेंडशिप होती है। और वो Very true. आपको एक स्टैंड देती है कि जिससे आपको आगे बढ़ना है, जिसको आप जो कह रहे हैं कि बहुत आगे रास्ता है, तो वही आपके फ्रेंड्स आपको कह रहे हैं कि बहुत आगे जीना है अभी तो। Yes, yes. बस वही आपका मुझे देखकर सुनकर बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच। And you're from Mumbai? नहीं, अभी इंदौर से हूँ। मुंबई में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो मैं वहाँ रहती हूँ। अभी भी 7 रहकर आई हूँ। कल वीडियो बनाएंगे, सोलो हाँ एक्ट जी, करेंगे। श्योर श्योर, मैं आपके साथ डांस भी करूंगी। Sure, sure. I'll teach you. Don't worry. करेंगे. Wonderful. Yeah. Yes, yeah. Neha is also she has very inspiring journey. So when she had first time cancer, she was pregnant, and उसके बाद में भी उन्होंने मतलब कीमोथेरेपी लिया, और today she is mother of 2 very cute young kids. I love them, and she got recurrence, and she's again going through the treatment. But उसको देख के लगता नहीं है. थैंक यू। Yeah, she had a आप लोगों से ही है दीदी, आप लोग से इतने लोग हैं, इतने फेवरेट पीपल बन चुके हैं मेरे इधर से, और भी बहुत हैं जो इतनी हिम्मत देते हैं कि नहीं यार, आगे अभी बहुत जीना है नेहा को। You have, of course, fight back. Don't worry. सब ठीक हो जाएगा. खाने में ध्यान रखा करो और एक्सरसाइज करा करो. And positive things. मैं करूंगी. बिल्कुल बिल्कुल, मैं करूंगी, मैं कर रही हूँ। Yes, yeah. Yeah. तो कनेक्ट, हम लोग टच में रहेंगे. Don't worry. जी जी जी, हाँ जी हाँ जी, Thank you. थैंक यू सो। Yeah. Mehul, would you like to share? क्या बोलूं मैं? मुझे तो बस Oh my God. मुझे तो आपके गाड़ी के ऊपर डांस करना है. नहीं, मैं बोलिए बोलिए अंजलि जी। बहुत सरप्राइज दिया आपने मुझे यार. अरे नहीं, मैं तो 2 बजे से जाग रहा हूँ, मतलब रात में। अभी सुबह बजे 8 बजे मैं बोला अगर मैं उठा नहीं टाइम पे तो फिर मैं अंजलि जी का मिस कर जाऊंगा, तो आई एम अवेक हाफ नाइट। I love to dance with you on your car, blue car. हाँ, मुझे सिर्फ एक ही डांस आता है, डांडिया। मैं गुजराती है ना, तो मैं बस वही कर सकता हूँ। हम लोग डांडिया करेंगे, बेली करेंगे, सब करेंगे, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. चलेगा पक्का। मैं I'm like, इतना अच्छा लग रहा था आपको सुन के कि ऐसे मेरी वाइफ भी स्टार्टिंग में मैं चाय मैं बनाता हूँ घर में, बिकॉज मेरी वाइफ ने कभी चाय नहीं बनाया। एक्सक्यूज कि तू गुजरात का, तो तू ही चाय बना, ऐसे। तो मैं वो भी सुन रही थी आपकी बात, एंड शी वाज आल्सो सो इम्प्रेस्ड। शी वाज सेइंग कि ये मतलब शी साउंडिंग फुल ऑफ लाइफ। मतलब ऐसे जो आदमी अगर गलती से सुन भी ले और डिप्रेस रहेगा तो वो एकदम जाग जाएगा, अरे क्या कौन है। હું બી ગુજરાતી જ છું. હું જુનાગઢ નો, રાજકોટ પ્રોપર કાઠિયાવાડી। या માંગરોળ. हम वहां जाके दांडिया खेलेंगे। Sorry, I cried because that was some emotions हो जाता है. तो मैं कभी रोती सॉरी क्या, मैं भी रोता हूँ। मैं ट्रीटमेंट में था ना, मैं आपको बोलता हूँ, मैंने उस दिन ट्रीटमेंट, मेरे रूम में टीवी था, और उसमें वो आई वाज ट्रीटेड इन द यूएस, लेकिन वो टीवी पे दे यूज्ड टू पुट माय मूवीज। तो मैं कोई हिंदी मूवी देख रहा था और बहुत इमोशनल था, तो मैं भी रोने लगा था वो मूवी देखते देखते। तो नर्स ने मुझे रोते हुए देखा और भाग भाग के वो डॉक्टर को लेके आई, इसको कुछ हो रहा है। तो आई वाज सरप्राइज्ड, लाइक ये इतने सारे लोग क्यों आ गए, व्हाई यू क्राइंग, ये मूवी देख के। अरे क्या पागल है बोले। सो आई एम काइंड ऑफ वो टाइप का पर्सन हूँ। लेकिन अंजलि जी, 2-3 बातें जो आपने की ना, आई वांटेड टू आइटरेट। एक तो आपने जो वो खुन्नस वाला एटीट्यूड है कि उसने मुझे ऐसे बोला इसलिए मैं लड़ूंगी, आपकी फ्रेंड जो भी, तो दैट वाज वेरी, मतलब मेरा भी ऐसा ही है मूड कि एकदम बोला ना, इसको दिखाता हूँ करके। दैट इज व्हाट आई लाइक। एंड देन अब जो गाजर और हल्दी का दूध जो पीते हैं, दैट आई एग्री कंप्लीटली। मैं भी हल्दी का दूध रोज रात को पीता हूँ। आई एडवाइज एवरीवन हु आई कम इन कांटेक्ट विद कि कुछ तो है, मतलब पावर बहुत सॉलिड उसमें। एंड गाजर वगैरह सैलेड, आई हैव चेंज माय डाइट कंप्लीटली, तो दैट इज रियली हेल्पिंग मी। बट आई डोंट नो स्पेसिफिकली, लेकिन जो भी कर रहा हूँ वो चल रहा है, मतलब दैट इज हेल्पिंग। या और लास्ट, आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम ऑफ द शो बिकॉज़ हो गया। और लेकिन
जब मेरा 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 इंटरव्यू था तब मुझे ना डिम्पल जी ने गाना गाने को लगाया था। फिर मुझे याद है कि और एक स्टूडेंट था कोई यंग सर्वाइवर, he asked him to, he used to act in plays, so I forgot the name, उसको डायलॉग बोलने लगाया। तो आप अभी डांस अच्छा करते नहीं? नहीं, मैं तो आपको आपके भी, आप जो हंस रहे मुझे देख के, जो बहुत पहले क्यों नहीं हंसे मुझे देख के, तो मैं आपसे शादी कर लेती, क्यों मुझे मिले नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ है, हमारे ग्रुप में है, और क्या चाहिए, हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं ना। Wow, wonderful acting. Thank you. Yeah, Rajendra ji, would you like to share? Yeah, I'll say something. See, Anjali-Ben has got good, energetic, enthusiastic affirmations, and these affirmations are very necessary for the survival as well as to live the life beautifully. So I like that very much. Very energetically and very enthusiastically, she has conveyed all her affirmation and whatever she has been doing. 2 points also she has very nicely said. One is diets and exercise. Yes, it is necessary for cancer survivor. Even otherwise, it is necessary for any human being, but especially for cancer survivor, diets and exercise are very necessary. And to live life more happily, what she has stressed upon is hobbies. That also I say that actually it's a necessary hobby. If you don't have hobbies, your life has no purpose, or life will not be worth living. Now, last very important point, we have been talking about emotion. It's a very conflicting point whether we should be emotional, sentimental or not. The reason is say that if you are very emotional, then you may suffer a lot in life. So I remember Mr. M.C. Chagla in his book, Roses in December, beautifully described, if you are sentimental, then only you can enjoy the good moments of life. If you are not sentimental, then you cannot enjoy life. Maybe, okay, you may not have any problems or you may not suffer much, but really you cannot enjoy life unless you have an emotion. So a person with an emotion, person with a sentiment will definitely enjoy life in much better way. At times he may have to cry, he may have to suffer, but ultimately to have emotion is, I think, very important and necessary in life. I must compliment Anjali-Ben because she is a Gujarati. I do not know where from she is. I am from Ahmedabad. I am also a Gujarati. So would like to meet some time where if she says where is she available. Okay, nice listening to her talk. Absolutely nice. Thank you so much. I am from Mumbai. Oh, you are from Mumbai. Okay. Which place in Mumbai? Vilepale. Oh, okay. Good. Thank you, Rajendra ji, for sharing. And anybody else who wants to share? किसी को कुछ share करना है? Okay. Wonderful. Sanjali ji, मुझे आपसे पूछना था, if you अगर आपको what message you would want to give to everyone? मैं बोलूंगी be positive. Be positive and stay happily and एक smile देते रहो हमेशा. आपकी smile देख के दूसरे भी smile करेंगे. And food is very important. Healthy food. No outside food, no smoking, no drinking, वो सब छोड़ दो. And exercise every day. Do your exercise. कुछ भी हो, exercise तो करना है. You know, if you have a breast cancer, you have to go for shoulder exercise and all. जिसको जिस तरह से हाथ का, पाँव का, and think आंखों का भी expressions का exercise होता है, face का भी होता है, mouth का भी होता है. Do all exercise. If you don't know, go to the YouTube और किसी से contact करके. Even I can teach, not a problem. मैं सब कुछ करती हूँ. And first thing, don't go for gossip. Sorry, last thing, don't go for gossip and all. दोस्तों से ऐसी दोस्ती करो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले. दोस्त तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन select the friends you can learn something from them. जो आपको सीखने को मिले. टाइम पास के लिए फ्रेंड मत रखो. और ऐसे फ्रेंड रखो जो किसी को कभी खराब नहीं लगे. हाँ, मैं अगर मुझे किसी का कॉल आ गया, मैं बाद में करती, तो वो ऐसा नहीं बोले कि उसने फोन नहीं उठाया, मैं तुझसे बात नहीं. छोड़ दो ऐसे दोस्तों को. They know you are also busy. From where you are getting something to learn, keep the friends, motivate others also. Or my cancer patients, please, long way is waiting for you, direction is waiting for you. आपका जर्नी खुशी से ले लो और खुश रहो हमेशा.
और कुछ भी है ना, डोंट टेक सो सीरियसली, लाइटली लो, कोई भी कुछ बोल दिया तो। Thank you. Yeah. In fact, Shankar Rao ji has messaged, very inspiring, ma'am. I am with my 13-year-old daughter in a hospital for 14th chemotherapy cycle, and we both are listening to you now. So, yeah. Yes. So yeah, daughter, my God, praying for her. Don't worry. And whatever I say, be positive. Let her take rest. अच्छा खाना और अच्छी सी स्टोरी सुना. बच्ची है ना, so what is her liking? Find out what is her parents knowing what her liking. गाना सुनना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, या फिर उसको और कुछ अच्छा लगता है. Find out खाने में क्या अच्छा लगता है. Follow that and she'll be all right. Don't worry. मेरी तरह अच्छी तरह बाहर बन के निकल जाएगी. My blessing is always there for her. Don't worry. Thank you. Anuradha ji, would you like to share? Yeah. Yeah. Sorry, I did not know that's you. तो मुझे नाम नहीं दिख रहा था, बस Galaxy Tab दिख रहा था. So I should. Sorry. It's okay. Yeah. आज अंजलि जी, हाय अंजलि एंड हाय एवरीवन. अंजलि जी, आज आपको मुझे देख के एकदम कुछ कुछ होता है. मैं जो अंजलि ना, आपका मेकअप भी वैसे ही बैंड वैंड लगा के फुल ऑफ लाइफ, वैसी की वैसी बिंदास लड़की जिसको जिसको कहते हैं ना. तो मुझे आपको देख के एकदम याद आता है, ये लड़की है अल्लाह, क्या बोला जाए आपके लिए. फुल ऑफ लाइफ, मतलब आपको देख के समझ में आ रहा है कि यू आर सो चीयरफुल, लविंग. तो मैं आपसे जरूर कनेक्ट होना चाहूंगी, आपसे डांस सीखना चाहूंगी. इनफैक्ट मैं आपसे मेकअप के ट्यूटोरियल्स भी लेना चाहूंगी. आई लिव सो सिंपल ना, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मुझे अच्छा रहना आना चाहिए. आई वुड लव. एक बार मेरे घर आ जाओ 2 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए. एक अरे कॉलेज मैं इंदौर रहती हूँ, हमें ऑनलाइन ही करना पड़ेगा. मैं इंदौर रहती हूँ. We'll do online. Don't worry. We'll do online. और एक हम ग्रुप डांस करना चाहेंगे. जरूरी नहीं है, मैं हमारा यहाँ पर एक एनजीओ चलाती हूँ मैं, जिसमें सब ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवर्स हैं. तो जनरली वी डू डांस एंड ड्रामा, बट एक एक्सपीरियंस आपकी जैसी लेडी से सीखना और करना हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होगी. आई वुड लव टू डू. Really, I'll teach them. Free of cost, I'll teach you. Don't worry. Yeah, sure. Waiting for it. They all are my family, so I will teach them. Don't thank you. आप connect कर मेरे साथ, मैं ऑनलाइन सिखा दूंगी. Yeah, sure. We'll plan it, है ना. हम ऐसा कुछ प्लान कर लेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में we can telecast it that on YouTube. Yeah. We'll try to do so. मैं भी होता है ना, कैंसर डे होता है, वर्ल्ड कैंसर, मेरा कुछ मैं डालती, मेरे ग्रुप में डालते रहती हूँ. Yeah, I would like to join your group also. Please send the link. Yeah, thank you Anuradha ji for sharing, and such a wonderful deep connections that we all are forming here in this virtual space, and that's the beauty of Healing Circle Talks, I'd say. And Anjali, Anuradha ji has been, so she's also 2 times cancer Vijeta, and she is helping now thousands of cancer patients in Indore. She is running NGO Sangini, and they have been helping newly diagnosed patients, and she's associated with the hospital also, so वहाँ पे patients की counseling करना, उनको guide करना, and she's mom to everyone. So great. Yeah, so amazing people, everyone, and it's always very inspiring to connect with each other and learn new things, learn from each other's experiences. कि outcome सबका कुछ भी हो, लेकिन the journey is very inspiring, very beautiful, and many caregivers, many survivors, many patients, and that's the common thread through which we all are connected with each other. And we pray and wish that जो लोग अभी इस journey से निकल रहे हैं, we wish them lot of positivity, lot of blessings, good wishes, and बस यही हमेशा प्रेयर करते हैं कि वो सब जल्दी से इस ट्रीटमेंट से बाहर आ जाएं और एक आपकी तरह एक अच्छी सी हेल्दी, जॉयफुल, मजेदार जिंदगी की शुरुआत करें. बिकॉज एंड आई बिलीव दैट अगर आपने अपना, जैसे आपने बताया लाइफस्टाइल का, सो अगर वो सारी चीजों का ध्यान रख लिया है तो आई एम श्योर जर्नी काफी इजी हो जाती है. इनफैक्ट हमारे केस में भी हमें काफी चीजें पता नहीं थी पहले, सो वी टुक रॉन्ग डिसीजंस, काफी गलत चीजें किया, और तब क्या काफी यंग भी थे, तो और पता भी नहीं था कैंसर होता क्या है, तो जो मतलब काफी गलत चीजें की उस वक्त. एंड देन बाद में जब 4th स्टेज आया और जब बाद में और ज्यादा रिसर्च किया और ज्यादा लोगों से बात की,
तब पता चला कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था. And that's the purpose why we started this, to help patients starting from the beginning when they are diagnosed, that what are the things that we can take care of, ताकि सबको 6-8 महीने का, क्योंकि उतना टाइम लग जाता है रिसर्च करने में, समझने में कि क्या करना है, क्या सही किया, क्या गलत किया, और तब तक काफी लेट भी हो जाता है, तो काफी डैमेज भी हो जाता है. सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम ये अच्छी चीजों का, हेल्दी चीजों का पहले से ध्यान रखें. एंड आई द फ्यू थिंग्स दैट आई ऑलवेज सीन, लाइक फूड हैबिट्स, sleeping habits, and also mental emotional wellness, जो विल पावर होती है, that plays very important role. मतलब मेंटल इमोशनल वेलनेस का तो मैंने सबसे ज्यादा मतलब इम्पैक्ट देखा है रिकवरी में, ट्रीटमेंट में. एंड वो तभी होगा जब you have a passion, you have a vision, mission, you have a purpose, and you have a loving family with you who is with you throughout this journey, because there are going to be ups and downs for sure. So zaruri nahi family matlab ki blood family hi ho, it can be like any community, like anybody who you can call a family. So and the way all of you have opened your hearts for other people, कि कुछ भी हो जाए बस आप बिंदास कभी भी कॉल कर लीजिए, हिचकिचाना मत कभी भी, we are always there for you. Though we have never talked before, but just the common thread of cancer connects all of us at a very deeper level. So I'm really grateful to all of you for providing this opportunity to be able to share this space. And I wish that we had this kind of support before, when we were going through the journey. We all go through very struggling times, and we get lost in this whole new world of cancer. And that's the time these kind of stories of hope gives people hope, direction, and motivation to fight and navigate through this journey. And they always know, patients हमेशा मुझे बोलते हैं कि उन survival stories, cancer healing journey बहुत inspire करती है, because then now they feel that they are not alone. And there are many people who have gone through it, they have come out of it successfully, and they know what to do, what not to do. तो वो जो 6 महीने का टाइम है जो सीखने का होता है, जो वो शायद उनका 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में हो जाता है कि अच्छा अभी हमें बहुत चीजें पता चल गई है. So thanks to all of you for sharing your very inspiring journeys, and very 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 grateful to be here. And Neha, thank you so much for sharing, and your smile always gives me a lot of inspiration कि अरे उसका खुद का ट्रीटमेंट चल रहा है, बट थैंक यू दी. ये भी एक ब्लेसिंग है, दांत दिए तो. Yeah, so there is always light at the end of the tunnel, and you guys are live examples of that. So and आप लोग की कितने लोगों को आपकी जर्नी इंस्पायर करती है, क्योंकि it doesn't have to be always crying and sad and depressing. It was like that once upon a time, but not anymore, when we all connect digitally to everyone, कि हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, कभी भी गाइड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं. And yeah, and that's what matters in cancer. So definitely I'll जो हम लोग का जो ग्रुप है, चाहे वो ऐप हो या व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पे भी ग्रुप है. सो I'll do one thing, मैं अपना नंबर यहाँ पे शेयर करती हूँ. जो लोग उसमें नहीं है, आप बस मुझे एक मैसेज डाल दीजिएगा ताकि मैं आप लोग को उसमें ऐड कर लूँ. सो यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर. काफी लोग हैं वहाँ पे, बट जो नहीं है वो मैंने अभी अपना नंबर यहाँ पे शेयर किया है. सो आप लोग वहाँ पे बस मुझे एक मैसेज डाल दीजिएगा, and I will add you in the group so that you are able to help many other people and also learn from each other. So yeah, and thank you everyone for joining in today's Thank you, Dimple Di. Thank you, Anjali ji. Thank you so much. It was wonderful experience. Very, I mean, very, very enthusiastic, very, very motivating for sure. So Anjali ji, thanks Dimple for connecting so, मतलब इतने अच्छे लोगों से तो मिलवाती है ना. हर संडे मैंने, हर सैटरडे मैंने कहा ना, एकदम एक बूस्ट की बॉटल भर जाती है हमारे. यही बिल्कुल करेक्ट है. जैसे हम ग्रेटिट्यूड की बात करते तो सबसे पहले भगवान है, हम सब जो जिनको भी मानते हैं, लेकिन अब जाके अब लगता है डिम्पल दी के लिए सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड कि इतने लोगों से मिलवाती हैं वो, और जितने इतनी एक इम्यूनिटी बूस्टर है. I think it's आप सबका मैं बता रही हूँ ना, it's the positivity that attracts each other. और it's a long journey, जैसे अंजलि ने बताया, a long way to go for everyone, for me, for you, for everyone, and we can only go there when we walk together. So thanks to each one of you for joining this movement to make this beautiful community that helps each other.
एंड मैं कभी आप लोगों से मिली नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई ऑलरेडी फील वेरी डीपली कनेक्टेड एंड दैट्स व्हाट आई विल कॉल फैमिली. या एक्सटेंडेड फैमिली रेदर. एक बार हम मिलेंगे, सब विल मीट वंस ऑल टुगेदर. वी आर वेरी क्लोज बाय, सो हम लोग कभी भी मिलते हैं. तो एक बार हम ऐसा रखेंगे पिकनिक या कुछ ऐसा ना, we'll get together, all the people together, you know. तो क्या इंटरेक्ट भी हो जाएगा and they will enjoy. गोवा हमारा डेस्टिनेशन पक्का गोवा है. Yes, come definitely बनाते प्रोग्राम. Sure. थोड़ा लॉकडाउन हो जाने दो ना. Yeah, waiting for that. थैंक यू. एंड जो लोग अभी ट्रीटमेंट से निकल रहे हैं, जैसे अंजलि जी ने बोला कि आप मत रखिए, ये टाइम पे निकल जाएगा, अपना पैशन फॉलो करिए, कुछ ज्यादा स्ट्रिक्टनेस मत लाइए, गो विद द फ्लो, लीनियंसी रखिए, बट दिल हमेशा खुश होना चाहिए और दिमाग हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए. बस फाइट, बाकी जो अच्छा लगता है आप वो करिए. ये चीजें अगर आपकी सही हो गई तो आप सारी बैटल को फाइट कर लेंगे और हमेशा जीतेंगे. तो बस इसको मजबूत करना है, और इसको अगर आपने बोल दिया दिमाग को कि नहीं, मैं आई विल गेट थ्रू इट, आई विल डेफिनेटली ओवरकम दिस, देन यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस. तो बस उसको हमें हमेशा स्ट्रांग रखना है, बिकॉज बॉडी वही करती है जो आपका माइंड उसको बोलता है करने के लिए. अगर आपने पहले से, मैंने रिसेंटली बहुत अच्छा चीज पढ़ा है, एक रिसर्च थी, अगर आपका माइंड ने पहले से ही बोल दिया कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, चाहे कुछ भी हो, छोटा बड़ा चीज लाइफ में, ये बहुत डिफिकल्ट है, तो ज्यादा चांसेस है आपके फेल होने के. लेकिन अगर आपके माइंड ने बोला कि नो मैटर व्हाट, आई एम गोइंग टू गेट थ्रू इट, आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दिस, there are higher chances and 99% plus chances that you will be successful at that. तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर बोलते हैं, ताकि आप अपने माइंड को वैसे कंडीशन कर लें, और बॉडी वही करेगी जो आपका माइंड बोलता है उसको करने को, बिकॉज दैट्स द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. जो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं सोचता है, वो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हमेशा काम करता है. जब आप सो रहे होते हो तब भी वो काम करता है, और वो वही करेगा जैसा आप अपने माइंड को कंडीशन करते हो. इसके लिए पॉजिटिविटी, जॉयफुलनेस, क्योंकि कैंसर है, सिचुएशन अच्छी नहीं है ज्यादा, हमें सबको पता है ये, बट अभी इससे हमें निकलना है और सक्सेसफुली निकलना है इससे, राइट. तो उसके लिए ओनली वे टू गो थ्रू इट्स टू हैव दिस स्ट्रॉन्ग विल पावर, एंड कि नो मैटर व्हाट, स्टेज 4 है तो क्या हो गया, इतने सारे लोग सर्वाइवर्स है स्टेज 4 के, तो मैं क्यों नहीं, है ना. तो वो वाली स्पिरिट लेके चलेंगे तो अब सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. दैट्स द ओनली फाइन लाइन डिफरेंस बिटवीन अ पीपल हु आर नॉट एबल टू get through it and people who are able to get through it. So that mindset starting from the beginning helps a lot in the journey, more than anything else in all the treatment that you do. So that's my only message, and thank you so much. We'll meet again. One line. Please, Anjali ji, all yours. Today is your day. For everyone, for my cancer survivors or those who are going through the journey, for them this, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, जिसे खोना नहीं होगी रोना नहीं, जिसे खोना नहीं होगी रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल. Love you all. Love you. Yeah, thank you. What a beautiful ending of the circle. Thank you. Yeah. Okay. Bye everyone. Take care. Bye. Thank you so much everyone. Love you. Big hug to all. Stay safe. COVID time. Take care. All of you. Yeah. Bye. Bye.